بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 23 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانیدا، مصنف سمیرہ شریف دور، پیش کر بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 03332495373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 23 صفحہ نمبر 188 سے۔ اف، یہ لڑکی ہے یا کوئی مورت؟ اپنی گاڑی تک پہنچنے اس کے ذہن پر یہی بات سوار تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو اسے ہی اندر کلک کر رہی تھی۔ پتہ نہیں محسوسات کس نوعیت کے تھے، مگر خیال دیر پا تھی۔ انا ٹھیک ہی کہتی ہے، یہ لڑکی واقعی بلا کی خوبصورت ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ولید کو ایک دم انا کی بات یاد آئی، اور بھی بہت کچھ یاد آیا۔ آنسوں سے بھری آنکھیں اور اپنا ایک دم ہائپر ہو کر ہاتھ اٹھانا۔ احمق، سری گرل، نہ جانے کیا کرتی پھر رہی ہے۔ لگتا ہے اب اس سے دو ٹوک بات کرنا ہی ہوگی۔ اب پتہ چلانا ہی ہوگا کہ کیوں ایسا بہیو کر رہی ہے، کیا پرابلم ہے۔ انا کے تصور سے اور بھی بہت کچھ یاد آنے لگا تو ساتھ ہی تکلیف دہ احساس بھی دل میں کروٹ لینے لگا کہ اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور کتنی بے یقینی سے اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اتنی شدید ناراض ہے کہ اپنی شکل دکھانے کی بھی روادار نہیں۔ ولید کے اندر ملال بڑھنے لگا تو اس نے فوراً گاڑی کی رفتار تیز کر دی، مگر اندرونی اضطراب میں قطعی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پہلے مجھے انا سے بات کرنا ہوگی۔ اگر وہ پہلے کی طرح پھر ٹال گئی تو پھر روشانی سے ڈسکس کروں گا۔ آخر پتا تو چلے محترمہ کے ساتھ پرابلم کیا ہے، ایسا بہیو کیوں کر رہی ہے۔ اگر کوئی ریزن بھی ہے تو لاجک تو نظر آئے۔ ایک لائحہ عمل تیار کرنے کے بعد اس نے خود کو قدرے ریلیکس محسوس کیا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھاتے کیسٹ پلیئر آن کر لیا۔ وہ اپنے آفس میں مختلف فائلز کھولے مصروف تھا جب دروازے پر ناک ہوئی۔ یس کم ان۔ فاروقی صاحب اندر داخل ہوئے تو عباس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے عباس نے فائل ایک طرف ہٹا دی۔ سر، آپ کے سیکشن کے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو سیٹ خالی تھی اس کے لیے چند امیدوار کو کال کیا تھا۔ انٹرویو سیکشن میں شاہزیب صاحب بھی موجود تھے۔ یہ امیدواروں کی لسٹ ہے اور ہر امیدوار کی لسٹ کے ساتھ ان کے قواعد بھی درج ہے اور سلیکشن کمیٹی کا یہ ریزلٹ ہے۔ چونکہ یہ آپ کے سیشن کے لیے ویکنسی ہے تو سر شاہزیب کا کہنا تھا کہ سلیکٹو پرسن سے آپ خود بھی ایک بار مل لیں۔ فاروقی صاحب نے عباس کے سامنے ایک فائل رکھ دی اور ساتھ ہی سلیکٹو پرسن کی ریزلٹ شیٹ اور قواعد کی فائل بھی۔ عباس کے چند پر تمام پیپرز کو بغور دیکھا اور پھر فاروقی صاحب کو۔ بٹ میرے بابا نے ہم سے صاف اور واضح لفظوں میں کہا تھا کہ مجھے ایک ایکسپیرینس پرسن چاہیے۔ یہ سلیکٹو خاتون تو خود فریش MCS ہے۔ اب ان کو پہلے سکھاؤں گا یا کام کراؤں گا؟ عباس فائل دیکھ کر کہتے برہم ہوئے۔ یس سر، میں نے سر سے بات کی تھی مگر ان کا پوائنٹ آف ویو آپ سے قدرے چینج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوتھ فریش اور شارپ مائنڈ کی مالک ہوتی ہے، ان کی صلاحیتوں کو بھی استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے نیو سٹاف کو سلیکٹ کرتے ہوئے خیال کیا جائے کہ وہ فریش اور جوان ہو، انرجیٹک ہو۔ اس امیدوار کا اکیڈمک ریکارڈ بہت شاندار ہے، BSc تک اسکالرشپ ہولڈر رہی ہے یہ خاتون، اور MCS میں بھی بہت شاندار پرسنٹیج ہے، اور انٹرویو کے دوران میں سب سے زیادہ کانفیڈنٹ اور زبردست پرفارمنس انہی کی رہی۔ پچھلے دنوں سر سجاد صاحب کے سیکشن کے لیے جو خاتون اپائنٹمنٹ کی تھی وہ بھی فریش اور ینگ ہے۔ یہ دونوں خاتون ایک ہی اداروں کی فارغ التحصیل ہے، ایک جیسا اکیڈمک ریکارڈ ہے۔ یہ سعدیہ کی اب تک کی پرفارمنس بہت زیادہ زبردست ہے، یہ مس بھی انہی کے ریفرنس سے آئی ہے۔ فاروقی صاحب نے تفصیلی اور تعریفی بیان جاری کیا تو عباس نے اکتا کر فائل ایک طرف کر دی۔ بابا جان مطمئن ہے ان خاتون سے؟ اس نے پوچھا۔ یس سر۔ عباس کی سنجیدگی پر فاروقی صاحب نے فوراً سر ہلایا۔ اوکے، بلوائیں ان خاتون کو۔ سلیکشن تو آپ لوگ کر ہی چکے ہیں، اب بھی آپ ہی بات کیجیے گا، میں بس چیک کروں گا۔ عباس نے انٹر کام فاروقی صاحب کی طرف بڑھایا تو انہوں نے فوراً متعلقہ لائن پر کال ملائی۔ عباس صاحب کے سیکشن کے لیے جو خاتون سلیکٹ ہوئی ہیں ان کو اندر بھیج دیں۔ فاروقی صاحب نے پیغام منتقل کر کے انٹر کام کو رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی نسوانی آواز آئی۔ میں آئی کم ان سر؟
ब्राउन चादर सलीके से ओढ़े वो लड़की दहलीज पर खड़ी थी। अब्बास ने बेजारी से देखा, ऐसी डरपोक सी लड़की कई गज चादर इर्द गिर्द फैलाई उसके डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट हुई थी। लड़की को देखकर अब्बास का खौफ से बुरा हाल हुआ। कम इन, उसने रुखाई से कहा तो लड़की अंदर बढ़ आई। तशरीफ रखिए। फारूकी साहब ने अब्बास के तेवर देखते खुद ही लड़की को सीट की ऑफर की। वो दाएं तरफ रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। थैंक्स। क्या नाम है आपका? अब्बास ने साबका मूड पे ही पूछा। राबिया नवाज। बट सर, मेरी सीवी में मेरे मुतालिक तमाम मालूमात दर्ज है। नाम बताकर उसने बड़े सलीके और एतमाद से अब्बास के सामने रखी अपनी फाइल की तरफ निगाह करते हुए कहा तो अब्बास की भुनुएं तन गई। जी, देख चुका हूँ आपकी सीवी में। आपके मुतालिक आपकी जुबानी कवायद सुनना चाहता हूँ। अब्बास ने अब के नाराजी से कहा। MCS किया है हाल ही में। मैंने यहाँ न्यू अपार्टमेंट में सादिया के रेफरेंस से आई हूँ। मैट्रिक FA में स्कॉलरशिप होल्डर रही हूँ। BCS में कारकर्दगी एकेडमी लिहाज से बज़ाहिर शानदार है। हाँ, एक्सपीरियंस के लिहाज से फिलहाल मैं 0 हूँ। ये मेरा किसी भी फर्म के लिए जॉब का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। वो बहुत ही एतमाद और वकार से बोल रही थी। अब्बास बगौर उसे देखता रहा। बज़ाहिर वो खासी खूबसूरत लड़की थी। पहली निगाह का तासुर जो भी था, मगर लड़की दकियानोसी नहीं थी और ना ही आउट ऑफ फैशन थी। हाँ, बड़ी सी चादर इनके जरूर लपेटे हुए थी। आप खुद ही बता रही हैं कि आपका ये जॉब का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जबकि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस पर्सन ही था, जबकि आप बिल्कुल फ्रेश MCS है। क्या ख्याल है, आप हमारी फर्म की रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर सकेगी? अब्बास ने बराह रास्त लड़की की आंखों में झांका। वो धीरे से मुस्कुरा दी। सर, मैं दावा नहीं करती। वक्त और हालात इंसान की काबिलियत का फैसला करते हैं। आप आजमा कर देख ले। वही पुरएतमाद लहजा था। वो जरा भी कंफ्यूज नहीं हुई थी। बराह रास्त अब्बास साहब को देखकर गोया हुई। मैं एकेडमिक रिकॉर्ड से मुतासिर नहीं होता। मुझे इंसान की सलाहियतें मुतासिर करती हैं, जबकि आपने हमारी डिमांड के मुताबिक सिर्फ क्वालिफिकेशन है, तजर्बा नहीं। मेरा ख्याल है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी में सभी बददिमाग सरफिरे इंसान मौजूद नहीं थे। अगर मेरा सिलेक्शन किया गया है तो फर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखकर भी किया गया होगा। अब्बास के सवालों पर उसने कदरे चिढ़कर कहा तो फारूकी साहब ने उस जवाब पर एकदम सटपटा कर अब्बास साहब को देखा, जिसके चेहरे के अंसलात खिंच गए थे। कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी ये। इस कदर कॉन्फिडेंस आपके हक में नुकसानदेह भी हो सकता है। आई थिंक अभी आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किया गया। अब्बास ने भी कतरे बरहमी से बावर कराया तो वो लड़की मुस्कुरा दी, यानी वार्निंग दी गई थी। यही तो आपको बताना चाह रही हूँ कि सर, अभी जब अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किया गया तो फिर साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहे कि मोहतरमा, आप इस वैकेंसी के अहल नहीं, क्योंकि आपके पास तजर्बा नहीं, जबकि आपकी सिलेक्शन कमेटी मुझे सिलेक्ट कर चुकी है। इसके बावजूद ये इंटरव्यू का दोबारा सिलसिला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लड़की का एतमाद जो का तू था, आपके फारूकी साहब ने अपनी बेसाख्ता उमटाने वाली मुस्कुराहट को बमुश्किल रोका, जबकि अब्बास उस लड़की से ऐसे जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। एकदम हैरत ज़दा रह गया। कितनी बदतमीज है ये लड़की। आप ओवर कॉन्फिडेंट ही नहीं बल्कि अच्छी खासी गुस्ताख भी है। फारूकी साहब को मुस्कुराहट रोकते अब्बास ने देख लिया था। उसका टेम्परामेंट एकदम लूज हुआ। अपने सीनियर वर्कर्स सामने ऐसी बेइज्जती, अब्बास झुंझला ही गया। थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट, बट मेरे लिए अब क्या हुक्म है? मैं जाऊं? क्योंकि आपकी तवक्कुआत पर मेरी सीवी पूरा नहीं उतर रही। सो प्लीज मुझे मेरी फाइल वापस कर दे ताकि मैं जा सकूं। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं सिलेक्ट होने के बाद दोबारा इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरूं। अब्बास के अल्फाज पर वो लड़की फौरन खड़ी हो गई थी और बगैर किसी लिहाज मुरब्बत के उसने कहा तो दोनों हजरात हैरतज़दा हो गए। बाबा जान को इसमें क्या नजर आ गया जो इसे सिलेक्ट कर लिया? क्योंकि किसी भी शोबे से मुतालिक सिलेक्शन वो खुद करते थे। अब कि अगर वो इस लड़की को जाने देता तो यकीनन बाबा जान से सख्त नाराजगी का सामना भी हो सकता था, जबकि ये लड़की उसे इंतहाई बदतमीज लगी थी। फारूकी साहब, आप इन मोहतरमा को बाबा जान के पास ले जाए। इनका सिलेक्शन उन्हीं के अंडर हुआ है। यहाँ जो कार्रवाई वक़्वे पर हुई वो भी बता दे। मेरे पास आप आइंदा ऐसे पागल लोगों के केसेस मत लाइएगा। अब ये बाबा का हैंडीकैप वो रखते हैं या रिफ्यूज करते हैं, मेरी बला से। अब्बास ने गुस्से से दोनों फाइल्स उठाकर फारूकी साहब को थमा दी और साथ एक सख्त वसीली निगाह राबिया पर डाली। इस एक निगाह से वो जैसे जल भुन ही गई थी। आप हैं किस खुशफहमी में? मुझे भी कोई शौक नहीं इधर जॉब करने का। ऐसे बदतमीज पागल इन मैनर लोगों के साथ मैं काम करूंगी? माय फुट। भले जॉब मेरा शौक है मगर मजबूरी नहीं। एक छोड़ ऐसी 10 जॉब्स तैयार है मेरे लिए। संभाल कर रखे अपनी जॉब।
फारूकी साहब के हाथ से अपनी फाइल खींचकर तनपन करती वो वहां से निकल गई। अरे मैम सुनिए तो, प्लीज रुकिए। बेचारे 60 साल फारूकी साहब उसके पीछे भागे जो तूफानी रफ्तार से ऑफिस का दरवाजा खोलकर बाहर निकली थी। मैंने नसा बेगम को बताकर वो आज पहली बार बाजार आई थी। अरसे बाद बाहर की दुनिया देखी तो दिल में बहुत सी भूली बिसरी यादें ताजा होने लगी। मोहब्बत और वफा की दौलत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। एहसास जिंदा हो तो कायनात हसीन तर हो जाती है, और अगर एहसास मर जाए तो फिर मोहब्बत भी इस मुर्दा जमीन को फिर से शाद-बाद नहीं कर सकती। वफा तो इजाफी खसूसियत है ना, जैसे मुर्दा जमीन को फिर से आबाद करने के लिए मेहनत के साथ साथ खाद, बीज वगैरह की जरूरत पड़ती है। परसों कबल किसी के कई अल्फाज उन्हें अपने दिलो दिमाग में घुलते महसूस हुए तो आंखें नमी से अट गई। आह काश, दिल से खोक उठी तो दिल अनजानी राहों पर चलने को उकसाने लगा। ताबिंदा भी ने बड़ी बेदिली से कुछ अशिया खरीदी और फिर ड्राइवर को अशिया देकर जाने का कहा तो वह हैरान हुआ। मगर आप इस तरह अकेली कैसे आएंगी? ताबिंदा भी यहाँ के रास्तों से अनजान बाजारों से बेखबर खातून थी। ड्राइवर की परेशानी लाजमी थी। मुझे कुछ और भी खरीदा है, तुम जाओ, और हाँ मेहरुनिसा और घर में दीगर लोगों से कहना कि परेशान नहीं हो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं कोई रिक्शा या टैक्सी ले लूंगी। इस वक्त तो लाइबा ने अपने भाई के यहाँ जाना है और घर में कोई गाड़ी भी नहीं है। मुझे किस देर हो जाएगी, वो खौफा इंतजार करेगी, तुम जाओ। ताबिंदा भी के दो टोक अंदाज पर ड्राइवर सर हिलाकर वहां से रुखसत हो गया। ड्राइवर के रुखसत होने के बाद उन्होंने इर्द गिर्द देखा। यूं लगा बरसों बाद बाहर की दुनिया में फिर से कदम रखा हो। बहुत कुछ बदल चुका था और भी बहुत कुछ तब्दीली के मराहिल में था। उन्होंने एक दुकान से कुछ फल वगैरह लिए। ज़हनो दिल में कुछ भी वाजे नहीं था, बस आज खुद ब खुद गैर जरूरी अमूर सर अंजाम पा रहे थे। ताबिंदा भी ने एक रिक्शे वाले को रोका, जगह और किराए का मामला तय करके बैठ गई। जो जो रक्षा आगे बढ़ रहा था उनके दिलो दिमाग में कई ख्यालात गर्दिश करते जा रहे थे। उफ सिकंदर, मुझे कतई अंदाजा ना था कि ऊपर से इस कदर आदम बेजार ख्वातीन से एलर्जिक दिखने वाला मर्द अंदर से इस कदर रोमांटिक भी हो सकता है। जिसके नसीब में तुम जैसी हसीन खूबसूरत दिलनवाज खातून हो, वो तो खुद ब खुद जिंदा दिल होने लगता है ना। बरजस्ता जवाब पर किसी की खिलखिलाती हंसी ताबिंदा भी के एहसाब को अजीब यज़मुर्दगी का एहसास बख्श गई। यकीन नहीं आता ये वही हजरत साहब मुखातिब है जिनके पीछे मैं दीवाना वार भागी हूँ, मगर इस हरजाई ने कभी कदर न जानी। खिलखिलाती हंसी थी जो किसी के अल्फाज ने फिर ताबिंदा बी को अपने शहर में जकड़ा। चले, अब तो हम आप ही को अपना सब कुछ मान बैठे हैं, फिर तो पिछले गिले शिकवे तो बेमायनी हो गए ना। आपको दिल की महारानी ही नहीं बनाया, बल्कि घर की मलका भी बना दिया। भारी लबो लहजे में कहा तो ताबिंदा भी को अपनी पलकें भीगती महसूस हुई। नवाजिश है आपकी महाराज, शोख लबो लहजे ने अजीब सी दिल गिरफ्तगी से दो चार कर दिया था। ले बेगम साहिबा, आपका घर आ गया। वो न जाने किन ख्यालों में गरक थी जब रिक्शे वाले की आवाज पर वो चौंक कर मुतवज्जा हुई। अनजान इलाका और जगह देखकर वो उलझी। उन्होंने यहाँ तो नहीं आना था। तुम्हें जिस जगह का कहा था वही लेकर आए हो ना? बाहर निकलकर इर्द गिर्द देखते वो मतलूबा मकान न पाकर परेशान हो गई थी। जी बेगम साहिबा, जिस जगह का कहा था वही लेकर आया हूँ। किस मकान में जाना है वो यहाँ से पूछ लेते हैं। ताबिंदा बी ने जद कदम आगे बढ़ाए और इर्द गिर्द देखा। बरसों पहले वो यहाँ आई थी, तब यहाँ आबादी न होने के बराबर थी। चंद एक घर थे इस मोहल्ले में, और अब दोनों तरफ खूबसूरत जदीद स्टाइल के घर आबाद थे। हर घर के सामने खूबसूरत बागीचा था। उन्होंने अतराफ में देखा तो चौंक गई। बाईं तरफ दाएं वाली साइड पर एक घर अभी भी खासी पुरानी तर्ज का आबाद था, जो जदीद स्टाइलिश अंदाज में तामीर शुदा घरों में यूं लग रहा था गोया कोई खंडर आबाद है। बीबी मिला घर के नहीं? उन्हें इर्द गिर्द देखते रिक्शे वाला भी उनके पास आ खड़ा हुआ। इस घर के सामने आ जाओ, रिक्शे वाले को कहते वो उस खंडर घर की तरफ बढ़ गई। घर उसी पुरानी तर्ज पर तामीर था। सड़क नई तामीर की गई थी, जिसकी वजह से घर सड़क के मुकाबले काफी नीचे हो गया था और बालाई मंजिल काफी खस्ता हाल थी। यकीनन बारिश के दिनों में सड़क का पानी घर के अंदर जरूर घुस जाया करता होगा। घर के सामने आकर ताबिंदा भी ने घर को देखा। बरसों बाद घर को देखा तो लगा बरसों पहले का माजी निगाहों के सामने आ ठहरा हो। सिकंदर, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। अल्लाह का वास्ता मुझे पनाह चाहिए। अगर मैं यहाँ रहा आती तो फिर कहाँ जाती?
इस बड़ी दुनिया में मुझे लगा कि सिर्फ आप ही वो शख्स है जो मुझे पनाह दे सकते हैं। एक डरी सहमी हालात की सताई आवाज ने ज़हन के दरीचे पर दस्तक दी तो और भी कई आवाजों की बातगश्त होने लगी। चलो बेगम साहिबा, घर तो आपको मिल गया है ना, अब मुझे एक किराया दे, मैं चलता हूँ। रक्षा वाला भी उतर आ। दाबीदा भी ने अंदरूनी खाना होने वाले शोरगुल को जेब से झटकते रक्षे वाले को देखा। वो 30-35 साल का आदमी था, मगर मेहनत और मजदूरी ने उसकी सेहत पर काफी असर डाला था। शायद हालात ने उसको सख्त जान बना डाला था, जो लहजा भी सख्त हो गया था। हाँ, इसी घर में आना था, मगर तुम जाना नहीं, ये पैसे रख लो, कुछ खा पी लो इतनी देर में, जब तक मैं फारिग होकर आती हूँ। उन्होंने अपना बैग खोला। पर बीबी, मैं इतनी देर तक इंतजार क्यों करूं? न जाने आप कब फारिग होती हो, मुझे कोई और सवारी मिल जाएगी इतनी देर में। रक्षे वाले का अंदाज प्रोफेशनल था। उन्होंने हाथ रोककर उसे देखा। तुम्हें तुम्हारे इंतजार करने के जो वक्त लगेगा उसकी भी अजरत दूंगी। कुछ वक्त लगेगा मुझे फारिग होने में, पता नहीं मकीन आबाद भी है या नहीं। हो सकता है तुम्हें इंतजार की ज़हमत ना उठाना पड़े। बहरहाल तुम इंतजार करो, ये पैसे रखो, मैं आती हूँ। बैग से 1000 का नोट निकाल कर रक्षे वाले को थमाया तो उसने हैरत से तबीदा बी को देखा। पर मेरा किराया तो सिर्फ 150 बनता है। रख लो, कुछ खा पी लो, मैं कुछ देर में आ जाती हूँ, वापसी का किराया समझ लेना। तबीदा बी ने उसे नोट थमाकर आगे कदम बढ़ा दिए। वलीद अस्पताल से निकलने के बाद ऑफिस जाने के बजाय घर चला आया। रोशाने कहाँ है? लाउंज में आया तो जोगरा से सामना हुआ। वो तो अना बीबी के कमरे में है। अना ने के नाम पर वो चौंका। कहे तो बुलवा दूं? जोगरा मजीद पूछ रही थी। अना घर पर है क्या? उसका अंदाज पुरसोच था। जी साहब। सुबह उनको काफी तेज बुखार था तो बड़ी बेगम साहिबा ने उन्हें कॉलेज जाने से मना कर दिया। ओह। टाई की नाट ढीली करते वो पलटा। आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं, रहने दो। जोगरा को मना करके वो अपने कमरे में जाने के बजाय अना के कमरे की तरफ चला आया। पिछली गलती याद थी, सो अब की बार दरवाजे पर दस्तक दी और जवाब का इंतजार करने लगा। आ जाओ जोगरा। रोशाने की आवाज आई तो वलीद ने कदम अंदर रखा तो दोनों ने पलट कर देखा। अना बिस्तर पर बैठी हुई थी, दोनों घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे, थोड़ी घुटनों पर टिकाए। वलीद को देखकर हैरान होती फौरन सीधी हुई, जबकि रोशनी उसके बिस्तर पर नींद दराज थी। वो भी उठ बैठी। अस्सलाम वालेकुम। वलीद ने सलाम किया तो अना ने हैरान होते साइड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर सर पर डाला। वालेकुम सलाम। आप इस वक्त? रोशनी ने पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। बस किसी काम से घर आया तो जोगरा से पता चला कि तुम इधर हो। हाँ, बस ये अना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी रात से, बस कमरे में ही बंद है। फूफो भी परेशान हो रही थी, अब भी कॉल करके पूछा है कि उसने कुछ खाया पिया या कमरे में ही बंद है। बाबा भी इधर ही थे, अभी उठ कर गए हैं। क्या हुआ है मोहतरमा को? वलीद ने बराह रास्त अना को देखा तो वो बगैर कोई तासुर दिए अपने हाथों को देखे गई। अंदाज बड़ा लाताल्लुकी लिए हुए था। वलीद को शिद्दत से उसकी लाताल्लुकी महसूस हुई। बुखार है, रोशनी नहीं बताया। कि बुखार किस सिलसिले का है? वो उसी तरह दरवाजे के पास खड़ा था। रोशनी वलीद के सवाल पर हंस दी। ले, ये अच्छी कही आपने, भला बुखार का भी कोई सिलसिला होता है? अना हनूज खामोश थी। अगर वो खामोश थी तो क्यों? वलीद को उसके अंदाज ने अजीब सी तकलीफ से दो चार किया। अगर वो अपने रवैये पर परेशान था तो क्या अना को अपने रवैये पर गौर करने का हक नहीं था? क्या उसे परेशानी नहीं थी? ठीक है, उसने हाथ उठाने की गलती की थी, मगर अना का अपना रवैया ही इस गलती का सबब बना था। जबकि वो सब कुछ फरामोश किए सिर्फ अपनी गलती की तलाफी और माजरत के लिए यहाँ तक दोबारा आ गया। मगर अना का अंदाज हनूज वही था। वो भला ऐसा क्यों कर रही थी? वलीद के अंदर इस सवाल ने एक हलचल सी मचा दी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एकदम उस लड़की का रवैया बदल जाता था? पुरसोच नजरों से उसने अना की तरफ देखा। वली भाई बैठे ना। रोशनी ने ऑफर की तो रोशनी के करीबी बिस्तर पर आ बैठा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वलीद ने बराह रास्त अना को मुखातिब किया तो उसने एक पल को निगाह उठाकर वलीद को देखा। उस एक निगाह में क्या कुछ नहीं था। शिकवा, इस्तराब, नाराजी, परेशानी, तकलीफ और अजियत और भी न जाने क्या कुछ था। वो बस देखता ही रहा। कैसी सहर तराज आंखें थी अना वकार अहमद की। वो हैरत ज़दा था। ठीक हूँ। वो फिर महर लब हुई। रोशनी ने दोनों को बगौर देखा। अना तो चुपचाप थी, मगर आज वलीद भी खिलाफे मामूल खामोश दिखाई दिए। आप अना को किसी डॉक्टर के पास ले जाएं,
रात में सिर्फ 10 मिनट के लिए निकली थी कमरे से, फिर घुस गई थी। सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया और ना ही डॉक्टर के पास जा रही है। हालांकि बाबा जान ने भी कितनी बार इसको कहा वो उनके साथ भी किसी डॉक्टर के पास चले। रोशनी अना के रवैये से परेशान थी, सो भाई को देखकर कहने लगी, पढ़े लिखों को पढ़ाना शायद इसीलिए कहा जाता है। माशाल्लाह ये खुद समझदार है, डॉक्टर बन रही है, अफसाने सेहत के असूलों से बाखबर तो है। अपनी बीमारी में क्या करना चाहिए बेखबर तो नहीं है। ख्वाह तुम इसके साथ उलझ रही हो, ठीक हो जाएगी। अना के रवैये पर कुछ उलझकर खासी तलखी से कहा तो अना ने बस एक पल को निगाह डाली। वलीद आंखों में तासुब को मिलाल दिए देख रहा था। अना फिर भी मोहर बला गई। अना क्या प्रॉब्लम है यार, कुछ तो बोलो। जब से तुम्हारे कमरे में आई हूँ ऐसे ही बैठी हुई हो। बुखार है वो तो पता चल रहा है, डॉक्टर के पास नहीं चलना तो ना से कुछ खा पी तो लो। अब की रोशनी ने भी कुछ बिगड़ कर कहा, मैं ठीक हूँ, बुखार भी उतर चुका है। डोंट वरी, भूख नहीं, जब भूख होगी मेरा घर है, खुद ही किचन में चली जाऊंगी। रोशाने के जवाब में बहुत सुकून से कहा तो वलीद उठ खड़ा हुआ। रोशनी भी उसके साफ अल्फाज पर खामोश हो गई थी। आप खाना खाएंगे? रोशनी उसे खड़ा देखकर पूछने लगी। हाँ भूख लगी है, तुम बाबा को भी बुलवाओ और खाना लगवाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। एक उचटती नजर अना के साबका अंदाज पर डालकर वो कमरे से निकल आया। रोशनी ने खाना लगवा दिया था। वलीद, बाबा और रोशानी ने तीनों ही घर पर थे, सो मिलकर खाना खाया। कुछ देर बाबा के साथ बैठा बातें करता रहा। रोशनी को करने को 100 काम थे, सो वो उठ गई। बाबा कभी कभार ही ऑफिस जाते थे, यूं ही वक्त गुजारने 2-3 दिन से उनका प्रेशर हाई हो रहा था, तो वो घर पर ही आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद वो बाबा के पास से उठा तो ज़हन में भी अभी भी अना का रवैया था। उसका इरादा भी कमरे में जाकर कुछ देर लेटने का था, जब सुगरा तेजी से उसी की तरफ चली आई। साहब जी, आपको अना बीबी का पता है वो कहाँ है? सुगरा के पूछने पर वो चौंका। क्यों, क्या हुआ? अभी खाना खाने से पहले तो वो अपने कमरे में थी। ये उनका मोबाइल उनके कमरे में काफी देर से बज रहा है। सुगरा ने हाथ में पकड़ा मोबाइल उसे दिखाया तो वलीद ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल से ले लिया। इधर ही कहीं होगी, फुप्पो या ऐसर के कमरे में, या फिर कहीं बाहर लॉन में होगी। उसका मोबाइल एक दफा फिर बजने लगा तो सुगरा से लेकर मोबाइल देखा। स्क्रीन पर शेवार के नाम के हरूफ चकमगा रहे थे। तुम जाओ, मैं खुद देखता हूँ। उसे जाने का कहकर खुद फुप्पो के कमरे की तरफ बढ़ते उसने साथ में यस का बटन पर पुश किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरी तरफ शेवार मर्दाना आवाज सुनकर चुप हो गई थी। हेलो, खामोशी पर वलीद ने कहा। अना से बात हो सकती है? वलीद के जवाब में उसने कहा, इन दिनों तो अना बीबी हमारे हाथ नहीं आ रही, आपसे क्या बात करवाएं? फूफो के कमरे में दाखिल होकर इतराफ में देखा, वो कहीं दिखाई न दी। आप कौन? वलीद के जवाब में शेवार ने पूछा। मैं वलीद अर्ज कर रहा हूँ, अना का मामूजाद। फूफो के कमरे से बाहर आकर अब वो एहसन के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। ओह, कैसे हैं आप? शेवार ने पूछा। अल्लाह का बड़ा करम है। सुबह अना का फोन आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो कॉलेज नहीं जा रही। मेरी भी अम्मी गांव से आई हुई हैं, तो मैंने भी आज छुट्टी की थी। अब वक्त मिला तो सोचा कि उसकी खैरियत पूछ लूं। वैसे वो है कहाँ? खुद क्यों बात नहीं कर रही? वो अपने कमरे में नहीं थी, सो मुझे कॉल पिक करना पड़ी। ढूंढने में लगा हुआ हूँ, शायद आज की तारीख में मोहतरमा मिल ही जाए। एहसन के कमरे में दाखिल होते वलीद ने मुस्कुरा कर कहा तो शेवार भी हल्का सा हंस दी। रोशनी कैसी है? शेवार ने पूछा। बिल्कुल एवन, अपनी शादी की तैयारियों में लगी हुई है मोहतरमा। एहसन के कमरे में भी ना भागकर वलीद कुछ उलझा था। अना मिली के नहीं? शेवार की कौन सी वलीद से बेतकल्फी थी, बस अना की वजह से थोड़ा बहुत तारुफ था, मजबूरन बात करना पड़ रही थी। अब अना को गैर हाजिर पाकर मुरव्वत बरत रही थी। नहीं, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। आप शेवार सिस्टर ऐसा करे, कुछ देर बाद कॉल कर लीजिएगा, तब तक मोबाइल मोहतरमा के पास पहुंच चुका होगा। नहीं, मैंने बस अना की खैरियत पूछनी थी। कल भी सारा दिन कॉलेज में बहुत जल और सुस्त रही, बुखार भी था, आज शायद ज्यादा हो गया है, वरना वो आम रूटीन में छुट्टी करने वाली लड़की तो नहीं। खैर, वो जब भी फारिग हो तो उसे कहिएगा कि वो मुझे कॉल बैक कर ले, या फिर शाम को मैं खुद कॉल कर लूंगी। जी बेहतर, और कोई हुक्म? वलीद अब दीगर कमरों में चेक करने और वहां भी ना पाकर बाहर आ रहा था। नहीं, बस यही कहना था। नाइस टू मीट यू एंड अल्लाह हाफिज। शेवान ने इखलाक निभाया। मी टू, अल्लाह हाफिज। कॉल बंद करके वो तेजी से बाएं से में आया। अतराफ में देखा तो बाएं तरफ देखकर रुक गया।
अना लॉन के एक गोशे में दरख्त के साए में बैठी हुई थी। अंदर ही अंदर गुस्से का उबाल उठा मगर वो पी गया। बहरहाल एक ज्यादती वो कर चुका था और अब मजीद बात बढ़ाना नहीं चाहता था। तुम इधर बैठी हो, यहाँ सुगरा और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढते। वलीद ने उसके करीब आकर कहा तो अना ने सर उठाकर उसे देखा। क्या बात है, कमरे से उठकर क्यों चली आई? वो इस तरह मुखातिब था गोया परसों रात दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही नहीं। अना के अंदर फिर से जवार भाटे का सा समा पैदा होने लगा। तुम्हारी दोस्त का फोन था। उसे इस तरह खामोश पाकर उसके करीबी दरख्त के साए में घास पर बैठते हुए वलीद ने कहा और साथ ही मोबाइल भी उसकी तरफ बढ़ाया। अब की बार वो हकीकत चौंकी। कौन? शेवार? उसकी चुप एकदम टूटी थी। फौरन मोबाइल लेकर कॉल मेमोरी चेक करते पूछा, किसने कॉल रिसीव की थी? मेमोरी चेक करने के बाद सर उठाकर वलीद को देखा। मैंने तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। और उसने मजीद इस्तफसार किया। शाम को कॉल करने का कह रही थी, साथ ही कॉल बैक करने का भी पैगाम था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कुछ तवक्कुफ के बाद वलीद ने पूछा। बेहतर हूँ। 2 लफ्ज़ी जवाब में काम निपटा कर वो उठने लगी तो वलीद ने एकदम उसके हाथ पर हाथ रखकर रोकना चाहा। बैठो तो सही। अदा ने वलीद की इस हरकत पर असद हैरानगी से उसे देखा तो वलीद ने एकदम अपना हाथ वापस हटाते हुए वजाहत दी। मुझे तुमसे माजरत करनी है। परसों रात न जाने एकदम मैं कैसे हाइपर हो गया। आई एम सॉरी यार। मैं एक पल में भी चैन से नहीं बैठ सका। गुस्सा नाराजगी सब एक तरफ, मगर मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये मेरी गलती है। रियली आई एम सॉरी। मैं दोनों रातें एक पल भी नहीं सो पाया। मैं अपनी बिहेव पर शदीद पशेमान हूँ और बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। अना हैरत से दंग रह गई थी। वलीद उससे माजरत करेगा वो सोच भी नहीं सकती थी। उसका बस ये ख्याल था कि वलीद उससे इसलिए बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि परसों रात खराब मूड की वजह जान सके। इसीलिए तो वो उससे इस तरह बरत रही थी। मगर अब जिस तरह वलीद माजरत कर रहा था, अना को लगा दिल में मौजूद सब गिले शिकवे खत्म होने लगे हो। सारे मलाल बस माजरत के लफ्जों को सुनकर थलने लगे हो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, बट यार इस सारे किस्से में मेरा भी कोई कसूर नहीं। तुम्हारा अपना रवैया भी तो कितना बदतमीजाना था। मैंने तो कभी बड़ी से बड़ी बात पर जब्त करने का दामन नहीं छोड़ा। न जाने परसों रात ऐसा क्यों हुआ। मुझे तुम पर गुस्सा भी आया। तुम गुज़िश्ता दिनों जिस तरह का रवैया अपनाए हुए थी, एकदम पुरसुकून और अगले ही पल बिल्कुल अनजान और अजनबी अंदाज। मुझे तुम्हारे इस रवैये ने भी हर्ट किया। बहरहाल मैं गलती पर था और अपनी गलती पर मैं एक्सक्यूज करता हूँ। अगर तुम कबूल कर लो तो प्लीज। वलीद का अंदाज बड़ा मुल्तजियाना था। अना तसव्वुर में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी वलीद उससे माजरत करेगा। इट्स ओके। वलीद के रवैये पर वो खुद ही शर्मिंदा होते हुए ठहर गई। आपका भी तो कोई कसूर नहीं, शायद मैं ही गलत थी। उसके अंदर मलाल घुलने लगा अपनी जज्बातियत, अपनी कमफहमी पर। मैंने भी तो आपके साथ बहुत बदतमीजी की थी ना। उसे अब अपनी गलती भी याद आने लगी और वजह गलती से इस्तराब रगों पे में सरायत करने लगा। हाँ, गलती तो मेरी भी है ना। मुझे ख्वामख्वाह किसी की जातियात में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं था। ख्वामख्वाह वो हमारा कोई इतना ही करीबी साथी क्यों ना हो। और उससे भी बड़ी गलती ये थी कि मैं बगैर इजाजत तुम्हारे कमरे में दाखिल हुआ। वलीद अपनी एक और गलती कबूल कर रहा था जिस पर अना की गिरफ्त में ना थी, जो अना वकार के वहमो गुमान में भी नहीं थी। मैंने भला ऐसा कब कहा था? वलीद के अल्फाज पर उसे रोना आने लगा। वो वलीद के थप्पड़ मारने पर खफा जरूर थी, मगर वो माफी मांगने का ऐसा कभी भी सोचा नहीं था। बस वो तो ये चाहती थी कि वो बस उसे महसूस करे, उसकी फीलिंग्स को समझे, बिन कहे उसके जज्बात का अदराक हासिल करे। मगर महबूब को झुकाना उसकी लुगत में कहीं नहीं था। वो तो हमेशा उस शख्स को खुद से बहुत बुलंद, हमेशा ऊंचे मकाम पर बराजमान देखना चाहती थी। आप माफी मांगकर मुझे सख्त तकलीफ पहुंचा रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करें। वो अपने जज्बों से हार कर एकदम रो दी। उस शख्स के सामने खुद को संभाले रखना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता जा रहा था। अना, हम आपस में कजन्स हैं, भले उम्रों का फर्क से ही हमने अलग-अलग माहौल में एक तवील वक्त गुजारा है। फिर भी बाबा ने हमारी जो तरबियत की उसकी जड़ें आज भी मजबूत है। मैं रवायती मर्द नहीं हूँ। तुम अपने दिल का बोझ कह सकती हो मुझसे नहीं तो रोशानी से डिस्कस कर सकती हो। क्या प्रॉब्लम है, वजह तो बता सकती हो ना। अना ने फिर यूं शिद्दत से रोने पर वलीद को शदीद तकलीफ होने लगी। उसके सर पर हाथ रखकर उसने बहुत अपनाइयत से कहा तो वो जहाँ थी वहीं साकित हो गई।
वो भला उस शख्स को क्या बताती, उसके दिल पर क्या बोझ था, क्यों कर डिस्कस कर सकती थी। रोशाने तो एक तरफ अभी तक वो ठीक से अपनी जात के सामने भी अपनी हार का ऐलान नहीं कर पा रही थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके सर पर वलीद के हाथ का बोझ जू का तू था। उसने सर उठाया तो वलीद ने हाथ हटा लिया और बगौर उसकी आंखों में देखा जो बुखार और अब रोने से फिर सुर्ख हो रही थी। किसी इमारत को बगैर बुनियाद के खड़े नहीं देखा कभी। तुम्हें वाकई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लॉजिक दो। आई स्वेयर मैं फिर कभी तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। वलीद का अंदाज दो टोक था। उसने लब दांतों तले दबा लिए और बस एक लहजा को उस भरपूर दिलकश मर्द को देखा। दिल चाहा कि चीख चीख कर कहे कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी रीजन तुम खुद हो, मगर वो लब सीख गई कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं। नहायत इस्तराब और दुख से कहकर वो उठने लगी तो वलीद ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। ऐसा तो कभी नहीं जाने दूंगा मैं। अब तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जिस दिन से मैं पाकिस्तान आया हूँ सिर्फ चंद एक दिन के अलावा मैंने हर बार तुम्हारी यही कैफियत महसूस की। क्या भरोसा नहीं मुझ पे या एतमाद नहीं? अगर तुम मुझसे डिस्कस नहीं करोगी तो रियली मैं फुप्पो और एहसन से तुम्हारे इस रवैये की वजह जरूर पूछूंगा। आप हर बात लॉजिक के साथ कबूल करते हैं। अगर किसी इंसान के पास लॉजिक ही ना हो। मैं बहुत पुरसकून और इत्मीनान भरी जिंदगी गुजार रही थी। आपको पता है जब मैं अमेरिका में आप लोगों के साथ रहती थी और जब मामा पापा ने यहाँ आने का फैसला किया तो मैंने कितना शोर मचाया था। मैं यहाँ नहीं आ रही थी मगर जबरदस्ती लाई गई थी। वो तो बचपन था ना, मगर मुझे बहलने में कई साल लग गए और अब मैंने खुद को इस माहौल यहाँ के रहन सहन में डाल लिया था। मैं मुतमईन थी मगर अब लगता है सारा इत्मीनान रुखसत हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है मुझे नहीं पता। बस मुझसे कुछ मत पूछे और जब मेरे पास किसी के सवाल का जवाब नहीं होता तो बार बार सवाल दोहराकर मुझे तकलीफ मत दे। यूं समझ ले बहुत से मामलात बगैर लॉजिक और रीजंस के भी होते हैं। अना के लहजे में अजीब सा दुख हलकोरे खा रहा था। वलीद ने बहुत गौर से उसे देखा। उसकी खूबसूरती दुख और अजियत की लपेट में सर्दी की रोदात ओढ़े हुए थी। उसका खूबसूरत चेहरा मानित था गोया चांद जर्द पड़ गया हो। अना कोई तो वजह होती है ना, ऐसे कैसे मान लूं कि तुम। वो बहुत रसानियत से कह रहा था। प्लीज वलीद। वो मजीद भी कुछ कहना चाहता था कि अना ने एकदम हाथ उठाकर सख्ती से उसे टोक दिया। आप मेरे मामूजात हैं। मैं आपकी दिल की गहराइयों से इज्जत करती हूँ। अगर आपको मुझे यूं अजियत देकर कोई रूहानी खुशी हासिल होती है तो जरूर पूछिए, मैं रोकूंगी नहीं। मगर ये आखिरी बार और हतमी अल्फाज में कह रही हूँ कि मैं बहुत से मामलात में बहुत शिद्दत पसंद हूँ, इंतहाई हद तक जज्बाती। आइंदा अगर आपने मुझसे कुछ पूछा तो मैं साफ कह रही हूँ मैं आपसे बात करना, आपके सामने आना तक छोड़ दूंगी। अगर आपको लगे कि ये शायद नामुमकिन है तो मेरे लिए ये सब मुमकिन है। इसको एक कजन होने के नाते एक रिक्वेस्ट समझ ले। प्लीज मैं जो भी हूँ जैसी भी हूँ इसी हालात में कबूल कर ले। अगर नहीं कर सकते तो मुझे गैर जरूरी चीज समझ कर नजरअंदाज कर दे प्लीज। मुझे कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वलीद अना के लबो लहजे और अल्फाज पर गंग सा रह गया। अना, किसी को बड़े दुखों से बचाने के लिए मैं अगर छोटा दुख सह लूंगी तो कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाऊंगी। उसने मजरू हंसी हंसते हुए कहा तो वलीद लब भेज दिए और अना ने आहिस्तगी से उसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकाला। मैं जानती हूँ मेरे अल्फाज आपको दुखी कर रहे हैं मगर मैं मजबूर हूँ। प्लीज अपने सिर पर बोझ मत डाले। यूं ही समझ ले इधर कोई रीजन नहीं। अगर रीजन है तो कोई सॉलिड लॉजिक नहीं है। अगर किसी दिन मुझे लॉजिक मिल गई तो आपके पूछे बगैर आपके सामने अपने दिल का दर्द आश्कार कर दूंगी। मगर वलीद, बाज दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें आश्कार करने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि महसूस करने वाली निगाह खुद महसूस करती है। सो मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो भी मत दे। यूं समझ ले किसी को कोई कर सीधी होती है, मेरी कोई भी नहीं। हल्का सा मुस्कुराकर वो उठकर वहां से चली गई तो भी वलीद काफी देर तक उसी जगह बैठा रहा। अना के अल्फाज में छुपे मफहूम और दुख को तलाश करता रहा।